প্রথমেই আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে যে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা এসছেন সবাইকে আপনাদের ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। তার সাথে সাথে এই আসানসোল শহরের অর্থাৎ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, সমাজ সচেতন মানুষ যারা আমাদের এই আগত 17-18 ফেব্রুয়ারির সম্মেলনে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। 17-18 ফেব্রুয়ারি আমাদের সংগঠন এআইডিএসওর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন। পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলা, সমস্ত মহকুমা, ব্লক, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ থেকে প্রতিনিধিরা এই আসানসোল শহরে উপস্থিত হচ্ছেন। তারা নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত এই জেলা, এই শহরে উপস্থিত হতে চলেছেন। কেন্দ্রের যে সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা যে ভূমিকা নিচ্ছেন, কেন্দ্রের সরকার প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-র মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা ভয়ঙ্কর সংকট নেমে আসছে, এ রাজ্যের সরকারও যে বিকল্প শিক্ষানীতির নামে যে কমিশন গঠন করেছিল, তাদের কাছ থেকেও আমরা আশানুরূপ ফল পাইনি। পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজ, জনসাধারণ যারা শিক্ষাপ্রেমী, শিক্ষাকে বাঁচাতে চান, তারাও কোনো নতুন দিশা পায়নি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ রকমভাবে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, গোটা শিক্ষা নিয়ে যে ব্যবসায়ীকরণের চেষ্টা সরকারগুলো করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ তারা একত্রিত হলে চলেছে আগামী 17-18 ফেব্রুয়ারি। শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে কিভাবে বেসরকারিকরণ হচ্ছে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসের মুখে। এই পশ্চিম বর্ধমান জেলা, পাশের জেলা পুরুলিয়া, এই জেলাগুলোতে বহু স্কুল আমরা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছি যেখানে শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলো বন্ধ হতে চলেছে। শিক্ষক নেই, শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। নূতন শিক্ষক নিয়োগের যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে নানান ধরনের জটিলতা, নানান ধরনের দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে। অর্থাৎ একদিকে শিক্ষাকে রক্ষা করার আন্দোলন, শিক্ষার মর্মবস্তু, শিক্ষা যাতে সাধারণ মানুষের হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে না যায় তার জন্য আন্দোলন। অন্যদিকে শিক্ষার শেষে যুব সমাজের কাছে, শিক্ষিত যুব সমাজের কাছে চাকরির দাবি, কর্মসংস্থানের দাবি। এই দাবিতে গোটা পশ্চিমবাংলা আপনারা জানেন উত্তাল। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সামনে, যুব সমাজের সামনে একটা বিরাট বড় অন্ধকারময় পরিস্থিতি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আসানসোলে এবং এই শিল্পাঞ্চল এলাকায় এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা, সেগুলোর দিকে না তাকিয়ে, পরিবেশের দিকে না তাকিয়ে এখানে নানান ধরনের প্রকল্প আসছে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবার জন্য। সে কয়লা খনি হোক, অন্যান্য কর্পোরেটদের স্বার্থে বহু ধরনের প্রকল্প, বহু ধরনের চেষ্টা, অপচেষ্টা সরকারগুলোর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। ফলে গোটার দেশের পরিস্থিতি, এই রাজ্যের পরিস্থিতি এবং এই জেলায় এখানকার যে বিশেষ পরিস্থিতি, এর মধ্যে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলায় এআইডিএসওর যে লাগাতার আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা, তাতে 17-18 ফেব্রুয়ারি গোটা পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা সম্মেলন এখানে চলেছে। এবং এর সাথে আপনাদের জানাতে চাই যে আমাদের সংগঠন, আপনারা জানেন যে বিভিন্ন সংগঠন যখন নির্বাচন কেন্দ্রিক, ভোট কেন্দ্রিক এবং ক্ষমতা কেন্দ্রিক, পাওয়ার হাংরি একটা রাজনীতি করে, তখন আমাদের সংগঠন সম্পূর্ণরূপে একটা আদর্শভিত্তিক সংগঠন। ছাত্র সংগঠন হিসেবেও আমরা একটা আদর্শভিত্তিক, নীতিভিত্তিক ছাত্র সংগঠন, ছাত্র রাজনীতি পরিচালনা করার চেষ্টা করি। সে কারণে আমাদের কাছে আদর্শ, নীতি, নৈতিকতা এর ভিত্তিতে যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। একে সামনে রেখে আগামী 17-18 ফেব্রুয়ারি এখানে রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির পরিচালিত হবে। এই রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির পরিচালনা করবেন এই দেশের বর্তমানের যে বিপ্লবী আন্দোলন, তার একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা, প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি এই শিক্ষা শিবির পরিচালনা করবেন এবং আমাদের রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন শিক্ষাবিদের সঙ্গে সঙ্গে, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সাথে সাথে থাকবেন আমাদের সংগঠনের প্রাক্তনী এবং বর্তমানে এসইউসিআই কমিউনিস্টের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এর সাথে সাথে শিক্ষা ধ্বংসের এই যে পরিকল্পনা কেন্দ্রের, রাজ্যের সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে 17 ফেব্রুয়ারি এখানে একটি শিক্ষা সেমিনার
জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বিরোধী শিক্ষা সেমিনারও এখানে অনুষ্ঠিত হবে। এই জেলার শিক্ষাবিদরা, অধ্যাপকরা তারাও উপস্থিত হবেন। ফলে আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং আমরা এটা জেনে আনন্দিত হচ্ছি যে এই রকম ধরনের একটি শিক্ষামূলক, শিক্ষা বিষয়ক, শিক্ষা রক্ষার এই যে কর্মসূচি, সেটা যখনই আমরা পশ্চিম বর্ধমানের জনসাধারণের কাছে, ছাত্র সমাজের কাছে নিয়ে গেছি, তারা সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এবং এই কর্মসূচি সফল করবার জন্য সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ তারা সাহায্য করেছেন। সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজের কাছে এই আহ্বান রাখতে চাই। আসানসোলের সাধারণ মানুষ, ছাত্র সমাজ তারা প্রস্তুতি নিয়েছে আপনাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আমরা এসে এখানে উপস্থিত হয়েছি, দেখছি। আগামী 17-18 ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাংলার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, জেলাগুলো থেকে তারা আসবেন। তাদেরকেও আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এবং পশ্চিম বর্ধমানের AIDSO ইউনিটের পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই। आज यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार दोस्तों, हमारे छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी के तरफ से आप लोग सभी को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर हमारे सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य सचिव मणिशंकर पट्टनायक यहाँ पर रखे हैं। हम लोग क्यों आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं कि हमारे छात्र संगठन सन 1954 साल में 28 दिसंबर हमारे छात्र संगठन का प्रतिष्ठा हुआ था। हमारे छात्र संगठन जिसका चिंता को लेकर ये संगठन का शुरुआत हुआ था, हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी, हमारे देश के जो नवजागरण के जो महान मनीषी, उन लोगों को चिंता को लेकर हमारे देश के और महान मार्क्सवादी चिंतननायक कमरेड शिवदास घोष के चिंतन पर हमारे छात्र संगठन AIDSO की स्थापना हुई थी। हम लोग आज जो एक छोटा हॉल में, जो कलकत्ता के छोटा हॉल में हमारे AIDSO का प्रतिष्ठा हुआ था, आज हिंदुस्तान के सभी स्टेट में आज का जो समस्या है, शिक्षा को जो समस्या है, इस समस्याओं को लेकर एक ही मात्र छात्र संगठन जो लड़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इस साल हमारे संगठन के जिनका चिंता को लेकर चल रहे हैं, सर्वहारा के महान नेता कमरेड शिवदास घोष के बाद सेंटेनरी है। इसी मौके पर हम लोग 17 और 18 फरवरी को जो छात्र सम्मेलन और शिक्षण शिविर कर रहे हैं, इस मौके पर ही हम लोग जो कहना चाहते हैं, आज पूरा देश में केंद्र सरकार बोलिए, हर राज्य में राज्य सरकार बोलिए, जिस तरह शिक्षा को ख़त्म करने के लिए एक के बाद शिक्षा कानून लेके आ रहा है, शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा को ख़त्म करने के लिए, शिक्षा को व्यापारीकरण, निजीकरण और सांप्रदायिकीकरण करने के लिए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया है, जिसके वजह से शिक्षा को एक माने टोटली प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा का जो मेन जो मोटिव है, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, यही ख़त्म किया जा रहा है। अनसाइंटिफिक एडुकेशन लागू किया जा रहा है। जैसा कि जो कुसंस्कार, अंधा कुसंस्कार शिक्षा के सिलेबस में लाया जा रहा है, इसी के विरोध में ही हमारा पूरा देश भर में आंदोलन चल रहा है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं जो सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था, ये सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जिस तरह केंद्र सरकार बोलिए और हमारे राज्य के राज्य सरकार बोलिए, उन लोग जैसा कि पूरा कानून तैयार कर रहे हैं, इसके विरोध में हमारा देश में एक ही मात्र छात्र संगठन AIDSO इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे AIDSO के तरफ से पूरा देश भर में करोड़ों सिग्नेचर लेकर हम लोग प्रधानमंत्री के वो ज्ञापन दिए हैं। उसके बाद हम लोग पूरा देश भर में 28 दिसंबर हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह
जिसका जन्मदिन था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। ये 28 सितंबर से 23 जनवरी तक पूरा देश भर में हम लोग 25 लाख जो वॉलंटियर्स और 1 लाख हम लोग कमेटी, ये जो एंटी एनईपी जो आंदोलन चल रहा है इसके विरोध में हम लोग कमेटी किए हैं, और भी ये काम चल रहा है। इसी के कंटिन्यूशन में ये हमारे स्टेट कॉन्फ्रेंस है, पश्चिम बंगाल 12वां छात्र सम्मेलन। इस सम्मेलन को सफल करने के लिए जब हम लोग पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में, शहर में, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेज में हम लोग जब गए हैं, जो मुद्दा उठाए हैं कि शिक्षा को व्यापारीकरण किया जा रहा है, मेडिकल शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, इंजीनियरिंग एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं टीचर लोगों का सपोर्ट, स्टूडेंट लोगों का सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। आज ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप लोग यहाँ पर जो पत्रकार हमारे दोस्त लोग हैं, आप लोगों को जरिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, आसनसोल, पश्चिम बर्धमान और पूरा बंगाल के छात्र और नौजवान, हम लोग टीचर सभी के पास हमारे संगठन AIDSO पश्चिम बंगाल कमेटी के तरफ से मैं आवेदन करूंगा कि जिस तरह हमारा देश में शिक्षा को ख़त्म करने के लिए जो साजिश चल रहा है, उसी के विरोध में आप लोग आवाज़ उठाएं, हम लोग को साथ दें। जिस तरह पहले भी हमारे बंगाल में जब बयाबाज हुकूमत था, CPM हुकूमत था, जिन लोग अंग्रेजी हटाकर यहाँ का बंगाल के जो छात्र नौजवानों का जो हायर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन लेने में जो दिक्कत हुआ था, जिसे प्राइमरी से अंग्रेजी हटा दिया था, पास फेल हटा दिया था, उसके विरोध में 19 साल हमारे जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के जरिए उन लोग का झुकना पड़ा और अंग्रेजी प्राइमरी में वापस लाने में मजबूर हुआ। ये हम लोग जानते हैं। आज भी केंद्र सरकार की मोदी सरकार जिस तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे ये आंदोलन के जरिए हम लोग पूरा ये केंद्र सरकार के जो नीति है ये वापस लाने में हम लोग मजबूर करेंगे। जैसा कि किसान आंदोलन में 1 साल पार्लियामेंट घेराव करके जैसे किसान लोग अपना मांग हासिल किए हैं, हमारे छात्र संगठन AIDSO हिंदुस्तान के छात्रों लोग इसी तरह आंदोलन करके ये मांग भी हासिल करेंगे। यही अपील करूंगा आप लोगों के जरिए कि सभी छात्रों, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल सब एकजुट होकर इसी के विरोध में जो खतरनाक नीति, जिस नीति में सिर्फ शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को इस तरह एक इंसान बना रहे हैं जो इंसान का सोच नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा। जैसा हिटलर ने जर्मनी में बनाया था, वैसा ही हम हिंदुस्तान में लोग बनाना चाह रहे हैं। इसी के विरोध में ही हमारा आंदोलन चल रहे हैं। साथ साथ हम लोग सिर्फ आंदोलन नहीं, एक इंसान बनने के लिए आज के समाज में, आज के युग में अगर इंसान बनने चाहते हैं तो हमारे देश के जो महान जो क्रांतिकारी, इसके साथ साथ हमारे ये युग के महान नेता, महान मार्क्सवादी चिंतनायक कॉमरेड शिवदास घोष, जिनका इस बार बात सेंटेनरी है, उसका चिंता को फैलाने के लिए और भी मजबूत करने के लिए हम लोग AIDSO के तरफ से जो शिक्षण शिविर, पॉलिटिकल जो कैंप हम लोग 18 तारीख को करेंगे, वो भी हमारे छात्र नौजवान को तैयार करने के लिए, कॉमरेड शिवदास घोष का चिंता को फैलाने के लिए हम लोगों का ये शिविर में जो लेंगे, जो चर्चा करेंगे, हमारे आज का जो हिंदुस्तान के जो महान क्रांतिकारी पार्टी, एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी, हमारे ACUCI कम्युनिस्ट के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष हमारे संगठन AIDSO के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी, वो ये क्लास लेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो 17 तारीख जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में बात रखेंगे हमारे AIDSO के भूतपूर्व राज्य संपादक राज्य सचिव कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य और हमारे संगठन के महासचिव कॉमरेड सौरभ घोष यहाँ पर बात रखेंगे। और जो सेमिनार होगा 17 तारीख 11 बजे, इस सेमिनार में आसानसोल जो यूनिवर्सिटी है, काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी और
आसनसोल गर्ल्स कॉलेज, इस तरह जो यहाँ के जो अध्यापक प्रोफेसर लोग हैं, इन लोग भी सेमिनार में अटेंड करेंगे। आप सभी को इस सेमिनार में आने के लिए दावत दूंगा। साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने के लिए आप लोगों को भी मदद चाहिए। इसका प्रचार के जरिए ये आप लोगों के पास भी हम लोग मदद मांगूंगा। यही बात रखते हुए हमारे बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।